Rocket. I'm not saying the every Gen Z is like that, but most of the Gen Zs are like that, and I like it. Like फैशन गेम उन्होंने इतना अप किया हुआ है. You all want everything instantly. Yes, Gen Zs have no patience and they want things ऐसे ऐसे चाहिए मतलब चाहिए. People of other generations just hate Gen Z, and I don't know for what reasons. Maybe because they are bold, they have their opinion and they stand by it. So for today's video, we are going to react on the opinions that Gen Z have or the activities that they do, everything else. As I am a Gen Z myself, so I think it would be better to give my opinion on it. Let's see if I have them. By the way, this video is similar to the video that I did on the opinion video. This is the video that I'm talking about. If you have not watched it, if you enjoy this type of video, please do give it a watch. Here are the statements in my phone that I am going to talk about, and ये जो भी statements है ये मैंने ChatGPT और Google से लिया है so that I can react on it. I haven't read any of it. Please let me know if you agree or disagree with my opinions so that we can have a chat in the comment section below. So the first statement is, I check my phone within 5 minutes of waking up. Yes, I used to do that, but now I am in control. I don't see my phone. I won't say at all. Like some days I do check I have 100 plus and 100 messages but still don't want to reply. Okay, Gen Zs have a trait to not reply to text or even take a phone call, but I am a person who loves texting, so that doesn't apply to me. मैं text कर देती हूँ, reply back within a second, which is not a good thing. I would rather text than call someone. Yes, I would rather text someone than call someone's entire Instagram before meeting them. Yes, Gen Z do that to check how the person is, and I think it's a nice one to check before you go to meet somebody. I take screenshots of things I will probably never look at again. Yes, so true. We take screenshots and it just vanishes from our mind कि ऐसा कुछ था क्या. When जब हम बाद में scroll करते हैं अपना screenshot, nobody does, but if any day, then oh, ये मैंने screenshot लिया था. I have a saved folder full of things I will never buy. Yes, Gen Z do a lot of these things, like doom scrolling in Flipkart, Amazon, shopping. They scroll mindlessly in shopping apps and save items for the future. Like कभी ना कभी तो काम आएगा और हम ये खरीदेंगे. But they never do. I say I am going to sleep and stay on my phone for another 2 hours. Yes, ये तो बहुत ही ख़राब आदत है. I would agree, and yes, people of my age, Gen Z क्या अभी तो सबका हो गया है. इट्स जस्ट द एडिक्शन ऑफ फ़ोन. लाइक हम सो जाएंगे बोल के हम नहीं सो पाते भाई. हम फ़ोन स्क्रॉल 2 घंटे 3 घंटे करते हैं फिर सोते हैं, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग, एंड वी शुड चेंज दैट. I have cancelled plans because I suddenly didn't feel like going. Yes. One thing I love about Gen Z is अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद है, like they don't want to do it, they won't do it. Like they want people please, which I love about Gen Zs. Not everyone, I am still learning, but yes, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है आप मना करो. Like other generations people would do क्या कि अरे मेरा तबीयत ख़राब है, ये है वो है, and मैं नहीं आ सकता. They will still try to give excuses to just not go there, but Gen Zs are straightforward. मैं नहीं आ सकता भाई, मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, that's it. Even in official, like in their workplace, they are like that. मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे मेंटल पीस की ज़रूरत है, मैं नहीं आऊँगा. बीच में तो इतना मतलब वायरल हुआ था, like people were asking their HR manager कि मुझे नहीं आना क्योंकि मुझे लीव चाहिए, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे, मुझे ट्रैवल करना है क्योंकि मेरा मेंटल पीस खो चुका है. दे आर जस्ट सो डायरेक्ट. बट पीपल फ्रॉम ओल्डर जनरेशंस, आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू ओल्डर जनरेशन, बट द मिलेनियन और द बूमर, दे वर लाइक इसका डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, ये हो गया है, घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है. नो, आई वॉन्ट माई मेंटल पीस, इसलिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मुझे लीव चाहिए. दे आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई लव इट. आई ओवर थिंक अ टेक्स्ट आफ्टर सेंडिंग इट. यस. सेंड करने के बाद हम सोचते हैं अरे ये बुरा हो गया क्या. बट आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि जेन ज़ीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है भाई. एंड इट्स लाइक इन अ पॉजिटिव वे कि दूसरों को बुरा लग रहा है. आई डोंट नो, दे हैव एम्पैथी और दे डोंट हैव एम्पैथी. वो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ डिपेंडिंग ऑन हु आई एम विथ. ये तो जनरल है नहीं, लाइक इट डजेंट कैटेगराइज इन टू जेन जी ओनली कि पर्सनैलिटीज़ डिपेंड हो जाता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो. इट्स मी, लाइक इफ़ आई एम क्लोज टू यू, आई विल बी फ्री एंड ओपन अप अबाउट थिंग्स. एंड अगर मैं आपको नहीं जानती, यू आर ए स्ट्रेंजर, आई डोंट फील गुड अबाउट द ऑरा, क्या बोलते हैं, एरिया जो भी है, देन आई विल क्लोज माई सेल्फ इन अ सेल. पीपल हु नो, हु डोंट नो मी, दे नो. बिकॉज मुझे बहुत बार ये बोला गया है कि तुम वीडियो में तो इतनी बहुत बातें करती हो, इतना मजाक करती हो, बट इन रियल लाइफ वाई आर यू सो साइलेंट. Because I don't
because I am not comfortable around you. That's it. That's it. I would rather stay home than go to a crowded party. Yes, for sure. Gen Zs are like that. अगर हमारा ग्रुप है then they are okay कि हम ग्रुप में चले जाएंगे. But if they are strangers, वो मुंह बना देंगे. Best. I have watched a whole series just because everyone was talking about it. ट्रेंड पे बहुत चलते हैं Gen Zs. Like ट्रेंड ऐसे बनता है भाई, ऐसे ट्रेंड बनता है. इंस्टाग्राम पे ट्रेंड इतना क्रेजी, इतनी जल्दी बनती है, क्या क्या बताएं. आई टेक 50 फोटोज़ एंड पोस्ट ओनली 1. यस 50 फ़ोटो लेंगे, उसमें से 4 फ़ोटो अच्छी आएगी, उस पर ओवर थिंक करेंगे डालें या ना डालें. अगर मन मान लिया कि अच्छा है डाल देंगे, वरना वो भी डिलीट में जाएगा. आई फील गिल्टी व्हेन आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. यस आई फील गिल्टी व्हेन आई एम नॉट प्रोडक्टिव. I compare my life to people I see online. Yes, online culture online culture बहुत ही अच्छा है, ठीक है, until you start thinking about the people. मतलब दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हो कि उसका यहाँ पे प्रमोशन हो गया, उसका यहाँ पे प्लेसमेंट लग गया, या फिर he is going to this place, he is traveling to that place, he bought this bike, he bought this phone. बहुत प्रेशर हो जाता है कि उसने वो मेरे से जूनियर है एंड ही इज़ डूइंग सो मच थिंग एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. बट आई थिंक यू शुड नो द बाउंड्री एंड नो दैट एवरीवन्स लाइफ इज़ डिफरेंट. आई यूज़ मीम्स रील्स टू कम्युनिकेट माई फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ सेइंग दैम. हाँ, जेन जी का ये है कि अगर वो कोई भी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हो तो आप चाहते हैं तो आपको वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे. दे विल सेंड यू मीम्स, दे विल कम्युनिकेट थ्रू मीम्स. एंड येस, आई बिलीव मिलेनियंस और बूमर्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज. कभी कभी तो अपने ही एज के ग्रुप, लाइक एक जेन जी को दूसरे जेन जी से एज गैप फील होने लगता है कि ये क्या बात हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. देन यू रिसर्च इट, देन यू गेट इट, ओके दिस इज़ इट. एंड है थोड़ा सा लाइक दिस इज़ अ डिफरेंट जनरेशन इन ऑल टोटल. पता नहीं, आई फील लाइक आई एम साइमल्टेनियसली 15 and 30 years old. Oh my god, yes, the people of my generations are बूढ़े हो रहे हैं बहुत जल्दी इन देयर माइंड. लाइक दे थिंक दैट दे आर ओल्ड ऑलरेडी. उनका कमर में दर्द, उनके पीठ में दर्द, दे कांट स्टैंड फॉर लाइक 10 minutes. कहीं पे भी दिखता है चेयर बैठ जाते हैं, पर उतने फिट पे भी वो लोग ध्यान देते हैं. लाइक other generations, they were not actively participating in their health. I feel like my generation people are more aware about not only health but about everything. Like mental peace के बारे में ये लोग ही बात किए हैं. Like the generation of my people, I'm not taking any credits, but yes, they are the people who are so open about it, like talking about it. They are aware about their fitness, they are aware about their mental health, they are aware about how they put themselves out, they are aware about everything. So we are doing now things other generation think about Gen Z. Why are you always on your phone? Immediately pick up your phone. Like yes, Gen Zs are 24/7 on their phone, but they won't pick their phone right after you call you. Like वो थोड़ा वेट करेंगे कि हाँ 3-4 रिंग तो जाए फिर हम कॉल करेंगे, या फिर तो पूरा ही कॉल जाता है then I can text you back, but call, why does everything have to be posted online? Yes, Gen Zs post everything online and millennials don't like it or the boomers don't like it. We just, I know like for a fact, हमारे एक टीचर्स थे जो कि हमें लाइक सचेतन क्या बोलते हैं, अवेयर करवा रहे थे हमें कि यू शुड नॉट पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, लाइक वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, एवरीथिंग इन द सोशल मीडिया. लाइक जो स्टोरी लगा देते हैं ना कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम अभी यहाँ पे हैं. आई डू अग्री कि वो सब इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट सम पॉइंट इट्स रिस्की. लाइक you don't know if a stalker is stalking you. What language are you speaking? Like yes, our slangs, like even our generation people can't understand, so I can't blame you. कि पता नहीं भाई कहाँ से वर्ड लाते हैं like ऐसे बनाते हैं वर्ड्स और वो ट्रेंड में चला जाता है. Like what is 6-7? Nobody knows about it till date. Why do you need headphones everywhere? Yes, Gen Zs are more likely to like put on earphones, headphones, headbands, anything else. Like उन्हें बस चाहिए, even if they are not listening to any music, उन्हें बस चाहिए कि हमें कोई ना बात करे भाई. Most of the people who are always on the headphone or earphone, they don't want to talk to people. That's why that's an escape game. That's why they put on the headphones or headbands when they are in the gathering or कहीं भी. अगर फैमिली फंक्शन में अगर कोई इंसान तुम्हें लग जाए कि वो हेडफोन या फिर ईयरफोन लगा के घूम रहा है, देन जस्ट नो दैट ही डोंट वांट टू टॉक टू यू, लाइक एनी ऑफ द पीपल अराउंड हिम और हर. यू कॉल दैट एन आउटफिट?
यस पिक्चर भाई जेंजी का आउटफिट ओ माय गॉड लाइक द फैशन सेंस इट्स सो आउटस्टैंडिंग आई एम नॉट सेइंग द एवरी जेंजी इज लाइक दैट बट मोस्ट ऑफ द जेंजीज आर लाइक दैट एंड आई लाइक इट लाइक फैशन गेम उन्होंने इतना अप किया हुआ है वाई डू यू चेंज जॉब सो क्विकली यस जेंजी चेंज देयर जॉब सो क्विकली क्योंकि सी if they don't like any environment they don't try to fit into it they try to get out of it like पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर बॉस डांट रहा है तो डांट सुनो हम ऐसे ही रह जाएंगे हमें वापस दूसरा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा जेंजी जस्ट से एफ वर्ड मुझे नहीं करना तुम्हारा दो कौड़ी का जॉब एंड दे से मेरा मेंटल पीस मुझे प्यारा है आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब यू कीप योर जॉब विथ योर पॉकेट विद इन योर पॉकेट आई डोंट वांट इट क्लोज वंस दे डिड दिस and I was laughing all around कि like they can take shit bro like you have to change according to the generation पहले ऐसा होता था कि लोग अगर आप ज़्यादा काम करवा के थोड़े वेज में आप काम हासिल करवाना चाहते थे वो कर लेते थे आज के जनरेशन वो नहीं करेंगे आप उनको अगर ओवर वर्क कराओगे तो ओवर पेमेंट भी करवाना पड़ेगा विच इज़ अ गुड थिंग दे हैव डन लाइक आई थिंक जेंजी हैव डन इट सो गुड कि ठीक है भाई आपको पेमेंट नहीं देना तो हम काम भी नहीं करेंगे लाइक आई लाइक दिस अबाउट जेंजीज यू ऑल वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली यस जेंजीज हैव नो पेशेंस एंड दे वांट थिंग्स ऐसे ऐसे चाहिए मतलब चाहिए why do you need therapy for everything because they are traumatized by the previous generations their own generations like the thing that is going around they are traumatized and they need therapy you spend your whole day watching reels हाँ reels have done something to our mind कि हम उसके बिना नहीं रह पाते like the scrolling system has done something to our brain which is not good and we can't help it okay guys that's it for the opinions I think we should do some Gen Z slang मुझे भी नहीं पता कुछ स्लैंग्स मैंने ऑलरेडी मेरे भाई के साथ ये वाला वीडियो की हूँ मैं 1 साल पहले बट आई वॉन्ट टू डू दिस नाउ क्योंकि अभी बहुत चेंज हो गया है स्लैंग्स एंड लेट्स सी और यू वांट टू डू ए पार्ट 2 विथ माई ब्रदर और माई मदर मेरी माँ को तो कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा बट या आई कैन डू इट विथ माई ब्रदर लाइक हाउ मेनी ऑफ ही नोज द जेंजी स्लैंग्स बट यहाँ पे हम 5 करते हैं जेंजी स्लैंग्स आप कितने जानते हो मुझे कॉमेंट में बताना 8 फर्स्ट इज़ 8 ATE 8 मतलब you killed it bro you killed it you ate aura is your aura क्या बोलते हैं something cool aura riz is flirting skills और delulu is delusional delulu is in your delusion world कि जो कोई भी जो नहीं हो सकता but you believe that it will happen like me traveling to a BTS concert it's a delulu guys come on maybe in future never say never but yeah it's now trending so anybody watching this video don't know what is clock it जब कोई भी इंसान कुछ अच्छा बात बोल दे अच्छा काम कर दे कोई भी मतलब जैसे हम ताली बजाते हैं ऐसे करते हैं दैट्स क्लॉक इट नो कैप इज़ नो लाई नो कैप शॉर्ट फॉर्म जेंजी इतने आलसी आई वॉन्ट से बट इट्स कूल लाइक डब्लू बोल दिया तो आप क्या समझेंगे डब्लू अल्फ़ाबेट नो डब्लू मीन्स विन इट्स अ विन तो ये वीडियो लाइक ये पैटर्न स्लैंग्स केसिंग ये सब मेरे भाई के साथ चाहिए तो उसे प्लीज़ DM करो और उसे बताओ कि प्लीज़ डू अ वीडियो विथ मी मैंने उसे बहुत बार बोल दिया है कि चैनल खतरे में है प्लीज़ आजा कम बैक चाहिए मुझे बट वो नहीं सुन रहा है मे बी राखी में कुछ हम कर पाएँ अगर वो मान गया तो I have some ideas to shoot video with him but he doesn't agree and आप जाके उसे बताओ कि प्लीज़ भैया प्लीज़ कर दो वीडियो yeah that's it for today's video I hope you enjoyed it and if you like this type of video I can do more क्योंकि I think कि आपको ये सब enjoy तो लगता है झूठ मत बोलना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लाइक ये सब शूट करना या फिर ये सब देखना या फिर anything else so yeah that's it for today's video I hope you like it I will see you next very soon until then keep watching my videos with a smile on your face like I have right now bye guys and yes I would like to know about something like some opinions I need your opinions on आप कैसे टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे देखना पसंद करोगे बिकॉज आई एम कन्फ्यूज बिटवीन व्लॉगिंग डेली व्लॉग मतलब डेली व्लॉग नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे मेरा दिनचर्या कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है बट इफ़ यू वांट आई कैन मेक संडे व्लॉग या फिर ऐसा कुछ और ऐसे सिट डाउन वीडियोस जिसमें मैं अपना ओपिनियन देती हूँ या फिर एनी चैलेंज वीडियो या फिर आपको जो पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं कुछ कर पाऊँ मुझे समझ में नहीं आता मतलब मेरे पास आइडियाज़ है बट आई डोंट नो व्हाट यू पीपल वांट टू वॉच राइट सो आई वांट योर ओपिनियन ऑन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ मुझे बताना कि आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद है या फिर आप मेरे से देखना चाहते हो आई वुड लव टू क्रिएट फॉर यू सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो बाय गाइस बाय